سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روح القدس، یہ علیحدہ روح القدس ہے جس کا نام روح القدس ہو گیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں روح کے تعلق سے یہ روح پہلے نبیوں پہ اترتی تھی۔ نبیوں پہ کیا کرتی تھی بھائی؟ اترتی تھی، نبیوں میں ٹھہرتی نہیں تھی۔ یہ روح نبیوں میں نہیں ٹھہرتی تھی۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ وہ روح جو پانیوں پہ جنبش کرتی ہے، جس کے تحت علیہ مسیح تولد ہوئے، وہ روح نبیوں پہ اترتی تھی۔ پڑھیں ذرا قضات کی کتاب 3 باب کی 9-10 ہے، تو یہاں یوں مرکوم ہے بھائی، کالب کا بھائی کنز، اس کا بیٹا گنتیل، جب قوم بنی اسرائیل فریاد کرتی ہے خداوند کے آگے، تو خداوند ان میں سے گنتیل کو لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنی روح کو کیا کرتا ہے بھائی؟ اتارتا ہے۔ تو روح اترتی ہے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ 40 سال تک قوم بنی اسرائیل آرام میں رہے۔ اس پہ کیا اتری؟ روح اتری۔ پڑھیں بھائی ذرا، پڑھ سکتا ہے کوئی؟ ہاں بھائی، اینی باڈی؟ خداوند کی روح اس پر اتری، ہاں جی، اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا، ہاں جی، اور جنگ کے لیے نکلا۔ تب خداوند نے میسوپوٹامیہ کے بادشاہ کوشن رفتیم اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ ہاں جی، تو یہاں دیکھتے ہیں کہ گنتیل روح اتری ہے۔ اسی طور پہ آپ دیکھتے ہیں جنادی افتتاح جنادی، اس پہ روح اترتی ہے، تو فاتح ہوتا ہے، اب منت مانتا ہے کہ میں امون کے بادشاہ کو جیت لوں تو میں اپنی بیٹی کو قربان کر دوں گا، اس لیے کہ وہ مجھے پہلے ملی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں 11 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے افتتاح پہ روح اتری۔ ہاں بھائی ذرا جلدی جلدی سوچتے چلیں۔ افتتاح پہ روح اتری، 11 باب کی 29 آیت۔ اس کے بعد خداوند نے سال پہ روح کو اتارا۔ خداوند کی روح افتتاح جنادی پر نازل ہوئی، افتتاح جنادی پر نازل ہوئی، وہ جلال اور برسی سے گزر کر جلال کے مصفا میں آیا۔ ہاں جی، تو یہاں دیکھتے ہیں افتتاح جنادی پہ بھی روح اترتی ہے، اندر ٹھہرتی نہیں۔ اسی طرح سال پہ روح اتری، سال عمونی ناحس جو بہت بڑا لشکر کا سردار تھا، اس نے چڑھائی کر دی بنی اسرائیل قوم کے اوپر۔ جبیس میں جبیس کے لوگوں کو کہنے لگے کہ ہم تیری بیعت ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کر۔ اس نے کہا ایسے نہیں بیعت کروں گا میں، تمہارے ہر فرد کی، ہر عورت کی دائیں آنکھ نکال دوں گا، تب تم کو پتہ چلے گا، تب تم کو پتہ چلے گا کہ تم بنی اسرائیل ہو، میں تمہاری دائیں آنکھ نکالوں گا۔ وہ 7-10 لوگ بھاگے بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے ہمیں 7 دن کی مہلت دے دے۔ تو اس نے کہا جاؤ 7 دن سوچو تمہاری امت کو آ جائے۔ بھاگے ساؤل کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے ساؤل نے جو ہی یہ بات سنی وہ غصے میں آ گیا، خدا کی روح اس پہ اتری، خدا کی روح اس پہ اتری۔ تو وہ جلا کر اٹھا اور کہنے لگا بہن لاؤ، گھروں کو کاٹ دیا، تمام کے تمام ساری اسرائیلی سرحدوں پہ بیلوں کا گوشت مار دیا، اور کہا کہ تم یہاں کٹھے کل نہ ہوئے تمہارے جانوروں کے ساتھ یہی حال ہوگا۔ تو سب کٹھے ہوئے، اور سب ہوتے ہی ان کاستوں کو جو یبیس کی طرف سے آئے تھے، ناحس بادشاہ کی طرف سے، ان کو کہا کہ جاؤ کل تم سب کے سب آزاد ہو گئے۔ تو خدا کی روح نے کام کیا اور سارے کے سارے یبیس کے لوگ آزاد ہو گئے، اور ساؤل نے ان کو کلا کو ہٹا دیا۔
इसी दौर से आप देखते हैं बेशतर नबी आए हैं, सबके ऊपर खुदा की रूह उतरती थी, ठहरती नहीं थी। तो यहाँ हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जिसके अंदर रूह कुदस है। तो ये देखते हैं कि नबी के लिए, अंबिया के लिए, पैगंबर के लिए पेशगोई होती है। अब पाक रूह कुदस की पेशगोइयाँ भी कलाम अक़दस में पाई जाती हैं। तो पढ़ेंगे, लिखा है यशायाह की किताब 11 बाब की पहली आयत में कि यस्सी के तने से एक कंपन निकलेगी और उसकी जड़ से एक शाख निकलेगी, उस पर मैं अपने रूह को अंधेरूंगा। हाँ भी पढ़े यशायाह 11 बाब, यशायाह 11 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं आप जरा। उसके बाद यशायाह 42 बाब में भी यही है। तो मैंने अपने बंदीदा को मसा किया, मैंने अपने रूह को उस पर अंधेला। इसी तरह 61 बाब में है, यशायाह 61 में, तो मेरा बंदीदा जो रहाई देगा, जो कैदियों को रहा करेगा, तो मेरी रूह होगी। इसी तौर से खुदावंद ने अपने रूह को, उस रूह को जो बाग अदन में मुझसे और आपसे जुदा किया गया था, जो बाग अदन में मुझसे और आपसे जुदा किया गया था, उसको खुदावंद यीशु की कहते हैं अपने शागिर्दों को कहा और फूंका, रूह कुदस लो। पढ़ेंगे जरा मुझे आवाज से पढ़ दें। यूहन्ना रसूल कीजिए 20 बाब की 22 और 23 है, जरा ऊंची आवाज में पढ़े। फूंका जैसे बाग अदन में खुदावंद ने रूह फूंका और वो मिट्टी का खाकी, मिट्टी का पुतला जो है रूहानी और जिस्मानी जिंदगी ले बैठा फूंकने से, इसी तरह आज भी मैं और आप मुर्दा हैं। जिस्मानी तौर पर जिंदा रहते हैं, तो रूहानी तौर पर जिंदा होने के लिए मुझे और आपको रूह कुदस की जरूरत है। आप भी पढ़े। और ये कहकर रूह पर फूंका, हाँ, और उससे कहा रूह कुदस लो। उसने कहा रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो, हाँ जी, उनके बख्शे गए हैं। हाँ जी, जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम रखे। जिसके गुनाह बख्शोगे बख्शे जाएंगे। जिसके क्या, किसको कुदरत दिया, किसको ताकत दी, शागिर्दों को, मुझे और आपको। ये बात आज तक आप कलाम मुक़द्दस में देखें, किसी नबी को इख्तियार नहीं है गुनाह माफ करने का, शिफा देने का, क्योंकि लिखा है कि जितने ईमान लाए और जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो निजात पाएंगे, और जो नहीं बपतिस्मा लेंगे वो निजात नहीं पाएंगे, बल्कि क्या होंगे भाई, मुजरिम ठहराए जाएंगे, मुजरिम। इसलिए ये शर्त है ईमान लाने की, निजात की। जब तक कि मैं और आप ईमान लाते बपतिस्मा लेते हैं तो निजात पाएंगे। तो आगे क्या लिखा है, ईमान लाने वालों में ये मौजज़े होंगे। कौन थे भाई? वो सांपों को उठा लेंगे, वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, हाँ बदरूहें निकालेंगे, शिफा देंगे। पढ़े मरकज़ सूफी जी 16 बाब की 16, 17, 18 आयत में लिखा है वे ईमानदारों में ये मौजज़े होंगे। अब आज देखना है कि ये मौजज़े क्यों सरजद होते हैं, पहले क्यों नहीं थे। आपको पता है कि रसूल जा रहे हैं तो एक मिर्गी वाला आदमी, उसके बेटे को मिर्गी पड़ती थी, उसने आगे रसूलों को फेंक दिया और कहने लगा कि इनको दुआ करो ये ठीक हो जाए। दुआ की, नहीं ठीक हुआ, बड़े परेशान हुए, नाउमीद हुए, और उनका बाप भी बड़ा नाउमीद हुआ कि ये लोग खुदावंद के साथ रहते हैं मगर ये मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं ठीक कर?
क्यों नहीं किया? अभी रूह कुद्दस नहीं पाया था। रूह कुद्दस उनके साथ रहता था, उनके अंदर नहीं था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना रसूल की 14 बाब की 16, 17, 18 आयत में लिखा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। यानी दूसरा मदद रूह हक, जिसको दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो। अब वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे क्या होगा भाई? अंदर होगा, फिर तुम्हारे अंदर होगा। इसलिए उन रसूलों के पास साथ साथ फिरते थे, मगर रूह कुद्दस अंदर नहीं था, इसलिए वो ठीक नहीं कर सके। आपको पता है कि जब रूह कुद्दस उनको मिल गया तो पतरस के साए के नीचे से बीमार जाते थे तो अच्छे हो जाते थे। ये रूह कुद्दस की बात है। तो रूह कुद्दस मिलने का क्या तरीका, क्या ढंग, क्या है? लिखा है कि ईमानदार हो। ईमानदार क्या है? कि ईमान लाए हम मसीह यीशु पे। तो अजीजों, हम देखते हैं कि रूह कुद्दस की निशानी क्या है? क्या निशान है रूह कुद्दस का? रूह कुद्दस आपको और मुझे सिखाता है। वो नई नई ज़बानें बोलेंगे। क्या करेंगे भाई? नई नई ज़बानें बोलेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ होली गोस्ट। ये निशान है भाई। अब इसके बाद तनकीदी ख्याल लेंगे रूह कुद्दस के ताल्लुक से। तो कब रूह कुद्दस हम कैसे नाज़िल होता है? आप रसूलों के अमाल पढ़ें तो पहले बाब की 4 और 5 आयत में लिखा है कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, जैसा कि तुम पानी का बपतिस्मा लेते हो। मैंने तुमको बताया था, इसी तरह तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस का बपतिस्मा लोगे। ये मेरा हुक्म है। क्या है भाई? ये मेरा हुक्म है। यीशु बादशाह का हुक्म हम टाल देते हैं। क्यों टाल देते हैं? रूह कुद्दस लेना नहीं चाहते। क्यों? हमें ईमानदार होना पड़ेगा, हमें बेईमानी को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए रूह कुद्दस नहीं लेना। वो कहता है कि रूह कुद्दस लो, उसने फूंका। आपको पता है कि आदमी जब मिट्टी का पथरा है, मट्टी है, जैसे आजकल के तेरे लोग मट्टी हैं, मट्टी के बुत हैं, उनमें रूह नहीं है। तो जब तक के उनमें रूह नहीं, वो मिट्टी का बावा था, तो जब खुदा ने रूह फूंका तो जिस्मानी और रूहानी तौर पर जिंदा हो गया। आदमी मुझे और आपको जब तक रूह कुद्दस नहीं मिलेगा, मैं और आप रूहानी और जिस्मानी मुर्दा हैं। बाकरा में लिखा है, ज़बूर 49 की 20 आयत पे लिखा है कि जो खिद नहीं रखता वो हैवान है, गुनाह हो जाता है। जैसे हैवान नहीं मरता, वो मर जाते हैं जिनके पास रूह नहीं। क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको पहले इसलिए किया, मैं और आप रूह पाए। क्योंकि खुदा कलाम अक़दस में लिखा है, दूसरा शमूएल 14 बाब की 14 आयत में, मैं किसी को नहीं मारता। खुदा कहता है मैं किसी को नहीं मारता। मैं ये चाहता हूँ कि सब के सब जैसे बागन से निकले, बागन में वापस आ जाए। तो इसलिए वो रूह कुद्दस देता है कि तुमसे रूह कुद्दस छिन गया था गुनाह की वजह से। आज फिर खुदा यीशु मसीह आ गए हैं और कहते हैं शरीयतों में रूह कुद्दस लो। उसने फूंका और कहा रूह कुद्दस लो। हुक्म दिया इस शहर में ठहरे रहना जब तक के थोड़े दिनों के बाद तुम रूह कुद्दस ना ले लो। तो क्या हुआ? ईमान पहले बाप के 8-9 आयत में लिखा है कि जब तुम पे रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे भाई? कुव्वत पाओगे। तब तुम यहूदिया में,
कैसरिया में, सारे यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरोगे। और ये बातें करते गए खुदावंद आसमान की तरफ चले गए। तो थोड़े दिनों के बाद इधर 35 क्लोज कर दें, माल 2 बाब की पहली 6 याद पड़ी तो लिखा है पतरस कलाम कर रहा है तो ज़बाने आग के छोरों की मानद फटती हुई लोगों को नजर आई और वो तरह तरह की ज़बानें क्या करने लगे भाई? बोलने लगे। ये रूह कुद्दस का नज़ूल था। And this is the one and first symbol of Holy Ghost. सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्दस की ये एक पहल निशानी है जिसके लिए कलाम अक़दस में लिखा है कि बेईमानों के लिए गैर ज़बान निशान है भाई। तो आप देखते हैं कि जब रूह कुद्दस का नज़ूल हो गया तो खुदा ने क्या कहा था कि अभी मैं अपने जलाल को नहीं पहुंचा। यूहन्ना 7:39 में लिखा है अभी रूह कुद्दस का नज़ूल नहीं हुआ था। तो जब हुआ तो गैर ज़बान बोलने लगे। लिखा है वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, वो सांप को उठाएंगे, वो काटेगा नहीं, जहर नहीं होगा, जहर पिएंगे कोई असर नहीं होगा, बदरूहों को निकालेंगे। जो लोग रूह कुद्दस से खाली है वो कोई मौजूदा नहीं कर सकते। ये एक गारंटीशुदा बात है। बेशक वो कहें कि हम मौजे करते हैं, भाई किसी गैर कौम से भी मौजे हो जाते हैं। बलकूम देवता मौजे कराता है भाई, बलराम देवता जो है मौजे कराता है भाई, उसी का नाम लेकर के लोग मौजे करते हैं। तो उनको लोग कहता है भाई मानो मैं तो ये नहीं जानता। रूह कुद्दस गैर ज़बानें अब देखते हैं कि रूह कुद्दस जब यीशु मसीह के शागिर्द लोगों में हजारों की तादाद में पैगाम देते हैं, कलाम करते हैं, उन पर रूह कुद्दस नाज़िल होता है। तो हवाला देखेंगे इमाम 10 बाब की 44 और 48 है तो लिखा है कि जब वो पैगाम सुन रहे थे तो रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और गैर ज़बानें बोलने लगे। इसी तरह से 19 बाब की पहली 6 याद में लिखा है पौलुस रसूल जब अपलूस के सर पर उनके साथ 12 आदमी थे, हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, वो गैर ज़बानें बोलते और नबूवत करने लगते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है तनकीदी ज़ाहिर से ये निशान सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्दस के लिए गैर ज़बान दिया गया। आप जानते हैं कि आपको एक निशान मिला जब बाबा नूह कश्ती बना रहा था, कश्ती डूब कर बहाल हुई और खुदा ने एक निशान दिया। उनकी कुर्बानियों पे क्या निशान था? कैसे कदा दिखाई, वो निशान था कि मैं अब बारिश नहीं करूँगा। इसी तौर से गैर मानव का ये निशान है, ये बेईमानों के लिए निशान है भाई। इसी तौर से शरीकालू लाबन और यकूब दोनों मामा भांजा हैं, जब इधर उधर का रास्ता लेते हैं वहाँ एक निशान लगाते हैं पत्थर का। तो कहते हैं कि ये एक ऐद है, तुम इधर ना आना, मैं उधर न जाऊँगा, आज से तुम और मैं जुदा। वो एक ऐद था, पत्थर एक निशान था। इसी तरह से यीशु जब दरिया यरदन पार करता है तो 12 पत्थर 12 कबीलों के नाम से लेता है और निशान रखता है, कहता है ये एक ऐद है। जब हमारे बच्चे तुमसे पूछें कि ये पत्थर कैसे हैं, तो उनको बताना कि मेरी कौम मेरे इस्राएल सूखे पाँव यरदन से पार हो गई थी। इसी दौर से रूह कुद्दस का निशान जो मुझे आपको दिया गया है,
सिर्फ और सिर्फ गैर ज़बान है। कोई कहता है, अब तनकीदी ज़्यादा लें, आज कल कलीसियाओं में बहस छिड़ी हुई है कि गैर ज़बान ही निशान है और कोई निशान नहीं है जो शिफा देते हैं। मैं अर्ज किए देता हूँ आपको, पाक कलाम में लिखा है कि नई नई ज़बानें बोलेंगे तो होगा कौन? ईमानदार। ये एक निशान है भाई, ईमानदारी का। अब मैंने कहा कि वो जिसको कौसे ग़िज़ा कहते हैं वो निशान था। इसी तरह बेशतर निशान है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने भी एक कह दिया, प्याला लिया ये मेरे खून में नया ऐत है। इसी तरह करते रहना, ये एक निशान था। इसी तरह गैर ज़बान भी एक निशान है। अब लोग कहते हैं भाई गैर ज़बानें बोलते हैं, समझ नहीं आती। हाँ भाई, समझ नहीं आती। मैं पूछता हूँ कि वो जो बुर्ज बना रहे थे भाई, सब के सब एकदम गैर ज़बान बोलने लगे। घर जाते हैं, अपने बहनों से, अपने वालदैन से बातें करते थे, कुछ समझ नहीं आती थी उसको, कुछ समझ नहीं आती थी क्योंकि वो खुदाई ज़बानें थी। इसी तरह से मुझे और आपको जब ज़बान बोलते हैं दूसरे को समझ इसलिए नहीं आती तो हमारे ख़ानदान में नहीं है। जब वो ख़ानदान में आ जाएंगे वो समझ लेंगे कि गैर ज़बान एक निशान है। अज़ीज़ों, आज लम्हा फिक्रिया है। यीशु जाने से पहले कहता है कि रूह कुद्दस लोगे कि तुम मौजूद कर सको। इससे पहले वो रूह कुद्दस जो पानियों पे जुम्बिश करता था किसी पे नाज़िल नहीं हुआ। सिर्फ यीशु है वो कहता है कि बाप मेरे नाम से रूह कुद्दस भेजेगा। यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब की 25-26 आयत में लिखा है कि बाप मेरे नाम से रूह कुद्दस भेजा। आप रूह कुद्दस नाम क्या हो गया भाई? यीशु। फिर ऊपर लिखता है 15-16 आयत में दुनिया उसको नहीं जानती रहा है हम लोग, अब वो तुम्हारे साथ है। फिर क्या होगा? अंदर होगा। खुदा यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज किए देता हूँ कि मुझे और आपको ये पता कर लेना चाहिए कि अब ये पानी का बपतिस्मा जो है यूहन्ना भी देता है, यूहन्ना भी देता था। तो जब पानी के बपतिस्मा इत्तफाक कर लें फिर यीशु कहने की कोई जरूरत नहीं। यूहन्ना कह रहा है, मत्ती 3 बाब की 11 पढ़ दे जाओ भाई। मत्ती रसूल की इंजील 3 बाब की 11 क्या कहता है? तो मेरे से मुकद्दम है, मैं उसकी नीति की तरफ में खोलने चला रही हूँ। वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती रसूल की इंजील 3 बाब की 11 है। पढ़ दे जाओ की भाई। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। मुझसे जोरावर है, मैं उसके जूती उठाने के काबिल नहीं हूँ। वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। तब इसी तौर पे आप लूका रसूल की इंजील देखें 3 बाब की 21 और 22 है तो लिखा है कि सब के सब बपतिस्मा ले बैठे। यीशु भी बपतिस्मा लेकर दुआ कर रहा था तो रूह कबूतर की शक्ल में उनके ऊपर मंडराता हुआ नजर आया। पड़े नजर उनकी पढ़ दें लूका रसूल की इंजील 3 बाब की 21 और 22 है। हाँ भाई, इंजील लूका रसूल की 3 बाब की 21 और 22 है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ जी, यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था। ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया। आसमान खुल गया। जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाज़िल हुआ। मैंने अर्ज किया कि रूह की आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी। तो यहाँ लिखा है कि रूह कुद्दस जिस्मानी शक्ल में कबूतर की मानद खुदा यीशु मसीह उससे पहले खुदावंद के साथ बातें करता है, रूह कुद्दस के साथ बातें करता है मूसा, मगर देखा नहीं।
सबसे पहले रूल कुदस इब्राहिम ने देखा। किसने देखा भाई? इब्राहिम। वो उसको कहता है तुम जानता हूँ तू खुदा का आदम है। पढ़े तो एक पढ़ते हैं पैदाइश किताब 17 बाब की पहली है। तो उसकी शक्ल वो देखता है, अब कबूतर की शक्ल है और आखिर में इंसान की शक्ल में रूल कुदस आ गया। बाइबल में लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, बेटा इंतजार किया जो उसके गोद में है। बस किए देता हूँ, वो बेटा हुक्म देता है कि रूल कुदस। इतने लोग हैं जो बाशगाफ लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मेरे पास रूल कुदस है। तो अगर नहीं है तो सबसे पहले ईमान लाने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, तो रूल कुदस मिल जाएगा। यह ज़रूरी नहीं है कि बपतिस्मा लेंगे तो रूल कुदस मिलेगा। कलाम अक़दस में लिखा है रसूल पैगाम दे रहा था तो मख्तूनों में और गैर मख्तूनों में रूल कुदस नाज़िल हो गया। तो फिर पतरस कहता है कौन रोक सकता है पानी से? पानी लो और इनको यीशु के नाम पे बपतिस्मा दो। बाद में पहले रूल कुदस का बपतिस्मा हो गया, बाद में पानी का दिया है। मगर ये दोनों लाज़िम लज़ूम है भाई, पानी का बपतिस्मा और रूह का बपतिस्मा। तब जा करके मैं आप उस बाग एदन में वापस जाएंगे। वो छिना हुआ रूह जो खुदा ने वापस ले लिया, मुझे और आपको खाकी बना दिया नूरी से। हम थोड़े दिनों के लिए नहीं बने थे, आदम थोड़े दिनों का नहीं था, मगर गुनाह की वजह से थोड़े दिनों का हो गया। इसलिए मैंने और आपने अपनी जिंदगी पानी है जो पाक कलाम में लिखा है कि इस रोटी से खाएगा, वैसा नहीं जो पहले बाप दादा खाया और मर गया, मगर जो इस रोटी को खाएगा अब तक जिंदा रहेगा, अब तक, यानी हमेशा। इसमें बाद का शक व शकूक पाए जाते हैं, भाई हमेशा कौन जिंदा रहेगा? खुदावंद कलाम में लिखा है वो कौन सा आदमी है जो हमेशा जिंदा रहेगा और कब्र को नहीं देखेगा? इसलिए मैं ये देता हूँ जो खिर से वाकफ नहीं वो हैवान है। तो आज कलाम अक़दस में बाशगाफ लफ्ज़ों से यीशु कहता है कि मैं तुमको बाग एदन में वापस भिजवाने के लिए हुक्म देता हूँ, रूल कुदस रो, रूल कुदस रो, रूल कुदस रो। ये खुदा की आवाज़ है मेरे और आपके लिए। खुदावंद आप बरकत दे।